Okay, my screen visible. No, sir. Okay, now, Yes. yeah, okay. So we will go one by basically. Hello everyone and welcome to Star Infotech online classes. So in this session, I will explain you the top 10 interview question for the fresher. So in that basically, if you are the fresher and if you are preparing for the SQL interview, then this video is full for you. Okay. So if you aware of the SQL concept, then you can watch my previous video. In this session, I will explain you top 10 interview. So the first question is that what is the difference between char and varchar data type in a SQL? So basically, this is again a very important question that asked in the interview. So what is the difference between char and varchar? So if you aware that we are using the data type for the storing the data in a particular variable, right? So for that we are use the data type. Okay, so there is a multiple data type. So character data type basically useful for the storing the string of the fixed length. Okay, and varchar data type basically used for the storing the same the store the string for the variable length. So basically if you check the character length, the char is the length, the string less than the fix, and then it will be paddled for the extra memory allocation. Okay, so varchar is a string less than the set of the fixed length, then it will be stored the without padding with the extra memory space. Okay, so char stand for the character and varchar stand for the variable character. Okay. So storage size for the character data type is equal to the n byte. So it will be set to the length. Okay. The for the storage for the varchar data type is a variable length. Okay. So if you check in a below, you can check the in a diagram. So in this diagram, basically the memory allocation based on the character data type and for the varchar data type. Okay, so basically, if you check the character data type and varchar data type, so basically the memory allocation. So if you check the memory allocation, so for example, if I am storing the this name like Praveen name, so that time memory allocated from the 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 like that way. Okay, so char 10 data type will be creating the 10 the length. Okay, memory allocated for the 10 time, but the my character length is only the 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay, so it will be additionally memory allocated. So in a char, so this avoiding for the memory space, we have introduced the SQL introduced for the varchar. So it will be a variable type of the length. Okay, if you go through that one, you can easily understand how the it will be different for each other. Okay, so again if you check the memory allocation. Okay, so this is a major difference between the character and varchar data type. Okay, so the next one, question number 12, what is a subquery and explain with the example. So basically subquery, in a mostly interview question it will be asked that what is a subquery. So if you check the this is the outer query. Okay, and this is the inner query. So it will be that like that key subquery is a inner query which will be inside to the another query. So if you check the statement for that, a subquery is a query nested inside the another query, and it is used for the retrieval of the data based on the result of the inner query. Okay. So if you check the diagram, in the diagram there is a two query. Okay. So the last one is the outer query that we call as the parent query, and in that we are placing the subquery. So subquery basically nested inner query. Okay, we call as a nested or inner query. So take the example. There is a two table, student table and department table. Okay. So in the student table, there is a roll number, student name, department ID, and marks. In a department ID, department name. So if you join these two table using the subquery, for example, we need the student name who work in a the for example the computer department. Okay,
So for that, whatever we required the query, select roll number, student name, mark from the student, where the department id in. So after that we again place one another query. So this is called as the subquery. Okay, this is a form of the subquery. So this is the another query. So in this query, whatever selected, select department id from department where the department id equal to 1. So that means ki in a department table, department id 1. So department id 1 is a computer. So it will be retrieve the data only for the ram and sham. So it will be in a output. So this is a call as a subquery. Okay, so I hope you understood the this subquery concept. So moving next, so question number 13. So as I explained in the previous the lecture, so this is what are the different type of SQL join. Okay, so this is the most important question, and this question asked in a many interview. Okay, so basically there are different type of the joins in a SQL. So first one is the inner join, second one is the left join, third one is the right join, then the full join, then the cross join. Okay, so basically what happen in a inner join. So inner join what happen, so all this is the basically the matching element from the both side. फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि ए टेबल है, बी टेबल है, ठीक है, ये दोनों टेबल में अगर हम इनर ज्वाइन लगाएंगे तो दोनों में से जो भी कंबाइंड डेटा रहेगा तो वो यहाँ पे शो होगा, ठीक है, इनर ज्वाइन में, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ए का ये पोर्शन है और बी का ये पोर्शन है, दोनों में दोनों टेबल में ये डेटा कंबाइन है, तो ये डेटा एज आउटपुट में इनर ज्वाइन में आएगा, ठीक है। तो लेफ्ट ज्वाइन में क्या होगा कि ए टेबल है, बी टेबल है, ठीक है, अपने लेफ्ट साइड पे कौन सा टेबल है, ए टेबल है, तो ए टेबल का ऑल डेटा आएगा, ठीक है, ए में जितना भी डेटा रहेगा वो सब डेटा आएगा, उसके साथ में ये दोनों टेबल में जो भी कंबाइंड डेटा रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये बी में कुछ एलिमेंट है जो कि ए में भी है तो वो भी डेटा आएगा, ठीक है। तो ये होगा अपना लेफ्ट ज्वाइन। देन राइट ज्वाइन, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे ए टेबल है और बी टेबल है, ठीक है, तो बी टेबल अपना कौन सा साइड पे है, तो लेफ्ट साइड पे, तो जो भी सॉरी राइट साइड पे, तो राइट साइड में जो भी टेबल रहेगा उसका ऑल डेटा आएगा, ठीक है। यहाँ पे बी में जितना भी डेटा रहेगा वो ऑल डेटा आएगा और उसके साथ में क्या आएगा, ए में जो भी कंबाइंड डेटा रहेगा दोनों में, तो ये दोनों डेटा यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो ये होगा राइट ज्वाइन में। और फुल ज्वाइन में क्या होगा कि बेसिकली फुल ज्वाइन क्या है कि ए बी और सी, मतलब ये इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन, ये तीनों का आउटपुट जो भी रहेगा वो रहेगा अपना फुल आउटर ज्वाइन। ओके, फुल ज्वाइन। तो फुल ज्वाइन में ऑल द डेटा फ्रॉम बोथ साइड टेबल विथ मैचिंग और नॉट मैचिंग, ऑल द डेटा विल बी रिट्राइव इन अ फुल ज्वाइन। ओके, तो फुल ज्वाइन में ऑल डेटा आएगा, ठीक है। और क्रॉस ज्वाइन, सो बेसिकली दिस इज द अगेन जो भी डेटा फुल ज्वाइन में रहेगा वो ऑल डेटा आएगा, बट उसमें क्या होगा कि ये टपल फॉर्म में आएगा, मतलब इट विल बी पेयर टू द ईच अदर। फॉर एग्जांपल ए टेबल में 1 2 3 4 ए रिकॉर्ड है और बी टेबल में भी 1 2 3 4 रिकॉर्ड है, ठीक है। तो अपने यहाँ पे डेटा कैसा आएगा, वन मैच होगा वन से, वन मैच होगा टू से, अगेन ये वन यहाँ पे मैच होगा थ्री से, अगेन ये वन यहाँ पे मैच होगा फोर से, तो ये इतना डेटा आएगा। उसके बाद अगेन ये टू वाला, ये टू मैच विथ वन, देन टू मैच विथ टू, टू मैच विथ थ्री, ये टू मैच विथ फोर, तो ये भी डेटा आएगा। उसके बाद ये थ्री मैच विथ वन, थ्री मैच विथ टू, देन थ्री मैच विथ थ्री, देन थ्री मैच विथ फोर, तो ये भी डेटा आएगा। उसके बाद फोर मैच विथ वन, फोर मैच विथ टू, देन फोर मैच विथ थ्री, देन फोर मैच विथ फोर, तो इतना डेटा अपना टपल फॉर्म में यहाँ पे क्रॉस ज्वाइन में मिलेगा। तो ये बेसिकली डिफरेंस है बिटवीन द इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, देन फुल ज्वाइन एंड देन क्रॉस ज्वाइन में, ठीक है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देन द क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड ज्वाइन ऑपरेटर। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे क्या पूछा गया है कि यूनियन और ज्वाइन ऑपरेटर जो भी है तो उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि यूनियन कंबाइन ऑल द रिजल्ट सेट ऑफ द टू और मोर सिलेक्ट स्टेटमेंट वर्टिकली। ओके, तो ये अपना यूनियन कैसा परफॉर्म करता है, वर्टिकली परफॉर्म करता है, ठीक है। बट व्हाइल द ज्वाइन जो भी है, तो ज्वाइन कंबाइन द कॉलम फ्रॉम टू और मोर टेबल हॉरिजॉन्टली बेस्ड ऑन द ज्वाइन कंडीशन। ओके,
तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे कि यहाँ पे सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज द वन टेबल एंड दिस इज द अनदर टेबल, यू कॉल इट द ए टेबल बी टेबल। इसमें अगर हम यूनियन लगाएंगे तो हमें डेटा कैसे मिलेगा, और ये अपना वर्टिकल फॉर्म में मिलेगा, मतलब वर्टिकल इसमें अब हमें डेटा मिलेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर यूनियन है तो यूनियन मतलब अपना जो भी कंबाइंड डेटा है, मतलब दोनों में मैच होगा जो डेटा, तो वो आएगा। डुप्लीकेट डेटा यहाँ पे नहीं आएगा, तो 1 आएगा, 2 आएगा, ठीक है, ये टेबल में से। और इसमें अगर वापस से यहाँ पे 2 ऑलरेडी हमने लिया तो ये 2 नहीं आएगा, उसके अगेंस्ट 3 आएगा। तो 1 2 3 ऐसा डेटा हमें आउटपुट में यहाँ पे मिलेगा यूनियन में। अगर हम कंपेयर करेंगे इसको इनर ज्वाइन से, तो इनर ज्वाइन में भी सेम डेटा है, सेम टेबल है, ए टेबल है बी टेबल है, ठीक है। तो इसमें क्या है 1 2, देन इसमें 2 3 है, ठीक है। तो अगर इसको हम इनर ज्वाइन करेंगे तो अपना डेटा कैसा आएगा कि पहला तो ये ईच एलिमेंट मैच करेगा, ठीक है। 1 इज नॉट इन अ बी टेबल, सो 1 नहीं आएगा, ठीक है। ये 2 मैच विथ 2, देन 2 मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे 1 रिकॉर्ड मिलेगा। तो दिस 2 नॉट मैच विथ दिस 3, देन ये मैच नहीं होगा तो ये डेटा नहीं आएगा। तो हमें क्या मिला, ये 2 2 मिलेगा, बट ये डेटा हमें कैसे मिलेगा, मिला हमें तो हॉरिजॉन्टली अपना रिजल्ट मिला, ठीक है। तो ये बेसिकली मेजर डिफरेंस है बिटवीन द यूनियन एंड जॉइन ऑपरेटर, ओके। देन मूविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू हैंडल द नल वैल्यू इन अ सीक्वल क्वेरी। सो बेसिकली इन दिस क्वेश्चन इट इज आस्क्ड दैट कि अगर हमारे सिक्वल क्वेरी में कोई भी नल वैल्यू रहेगा तो उसको हमें कैसा हम उसको हैंडल करेंगे सिक्वल क्वेरी में। तो बेसिकली इन अ सिक्वल we can use a function like is null or is not null to check the null value and handle them in a appropriate in your query, ओके। तो ये हम प्रैक्टिकल से चेक करेंगे कि कैसा हम उसको हैंडल करेंगे, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द एग्रीगेशन फंक्शन इन अ सीक्वल। तो बेसिकली इट विल बी आस्क्ड दैट कि एग्रीगेशन फंक्शन कौन सा है, ठीक है। एग्रीगेशन फंक्शन में अगर हम देखेंगे तो काउंट हो गया, सम हो गया, एवरेज, मीन, मैक्स, ओके। ये क्या हो गया अपना द एग्रीगेशन फंक्शन है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। देन व्हाट इज द पर्पज ऑफ बिटवीन ऑपरेटर इन अ सीक्वल। तो बिटवीन ऑपरेटर क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई भी डेटा पर्टिकुलर रेंज में हमें अगर रिट्राइव करना है तो वो केस में हम क्या करते हैं बिटवीन ऑपरेटर यहाँ पे यूज करते हैं। तो between operator used for the filter the result within the specify the range of the value, okay। फॉर एग्जांपल अगर हमें फॉर एग्जांपल 1 to 5 का डेटा लेना है तो हम कैसे कंडीशन डालेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द डेटा फ्रॉम डेटा बिटवीन 1 to 5 लाइक दैट वी आर टाइपिंग द क्वेरी, ओके। then question number 17, how do you calculate the total number of rows in a table without using the count function। तो basically this is also again important question, how we can calculate the total number of row in a table without using the count function। तो basically count function हम use करते हैं basically counting the n number of record from the table, okay। तो विदाउट काउंट भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो कैसे यूज कर सकते हैं, तो यू कैन यूज द सिलेक्ट स्टेटमेंट विद द टॉप क्लॉज और लिमिट क्लॉज एंड टू द retrieve the first row and order by clause which will be used for the ordering the result, then you can use the row number of the last row and to the determine the total number of the row in a table, okay। so ये भी हम क्या करेंगे प्रैक्टिकल के थ्रू ये हम चेक करेंगे, ठीक है। तो this is basically the total 17 question that asked in the interview। so now what we will do, we will go one by one and we will check the question that I asked in this interview, okay। so the moving the 11th question, so char and varchar data type। so for that I will open my SSMS in my query, I will show you the table structure first of all। so for example this is my test database, okay। in that if you check create temp
क्रिएट टेबल टेम, देन इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे आईडी ये रहेगा अपना इंटीजर, ओके। उसके बाद आएगा अपना नेम, ओके। तो ये क्या रहेगा, कैर, एंड इसको हम क्या वैल्यू देंगे, 5 यहाँ पे हम वैल्यू यहाँ पे देंगे। और उसके बाद आएगा अगेन, उसके बाद आएगा नेम, इसको हम क्या करेंगे, varchar, और इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 हम लेंथ स्पेसिफाई करेंगे। उसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। तो नेम यहाँ पे मैं करूँगा 1, ओके। तो ये मेरा टेबल का स्क्रिप्ट हुआ, ठीक है। तो ये मैंने बेसिकली टेबल क्रिएट किया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ये टेबल। तो बेसिकली अभी इसमें कोई भी डेटा नहीं है, ठीक है। तो इसमें डेटा नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसमें इंसर्ट करूँगा, डेटा इंसर्ट करूँगा, इंसर्ट इनटू। तो अगर हमें डेटा इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंसर्ट इनटू, उसके बाद आएगा अपना टेबल नेम, ओके। और टेबल नेम के बाद आएगा अपना कॉलम का, जो भी कॉलम से उसका यहाँ पे नेम आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना है आईडी, उसके बाद है नेम, आईडी कॉमा नेम कॉमा नेम 1, ओके। तो ये मैं डेमो पर्पस के लिए यहाँ पे ये 2 वैल्यू लिया है, ठीक है। वैल्यूज अभी इसमें मैं क्या करूंगा, वैल्यूज इंसर्ट करूंगा, ठीक है। तो आईडी कॉलम है तो इसमें आएगा इंटीजर, और उसके बाद ये कैर डेटा टाइप है तो इसमें आएगा कैरेक्टर। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, PRAPIN। सो अगर आप इसका लेंथ चेक करोगे तो इसका लेंथ है 6, ठीक है। और मैंने स्पेसिफाई किया है 5 स्पेसिफाई किया है, ठीक है। और उसके बाद ये मेरा अगेन नेम है, ठीक है। तो उसका भी सेम द लेंथ है, ठीक है। उसमें भी मैं सेम नेम यहाँ पे इंसर्ट करूंगा। तो अब अगर मैं इसको इंसर्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, एक एरर मिलेगा। तो बेसिकली अगर हम इसको एरर देखेंगे कि टेस्ट डॉट टेम कॉलम नेम ट्रंकेटेड, ओके। ट्रंकेटेड मीन्स क्या, कि ये एरर बेसिकली क्या है कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि जो नेम है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो नेम का कैरेक्टर डेटा है और उसका लेंथ 5 है, बट मेरा स्ट्रिंग जो है उसका लेंथ 6 है। तो यहाँ पे PRAVI, ओके, आई तक मेरा डेटा यहाँ पे मैच हो रहा है, मैं मतलब इसमें इंसर्ट होगा, बट उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर है तो उसके लिए अपना डेटा यहाँ पे इंसर्ट नहीं होगा। अगर हम इसको अगर हम रन करेंगे तो अगर आप हम देखेंगे तो इसमें अगर मैं इसको एक लेंथ कम कर देता हूँ, ठीक है, और मैं इसको रन करता हूँ अभी, ठीक है। तो इसमें डेटा अभी अपना इंसर्ट हो जाएगा। बट अभी हम वापस से चेक करेंगे कि num1 it will be specified that कि it will be also indicating that कि this is again the length is a 5, so it will be not store the data, okay। तो जनरली अगर हमें कोई भी डेटा अगर वेरिएबल में है तो बेसिकली उसको हमें यहाँ पे आंसर स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको क्या करता हूँ, अल्टर करता हूँ, अल्टर करूंगा, अल्टर करूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट मैंने अल्टर किया, ठीक है। उसके बाद मेरा अगेन नेक्स्ट, इसको भी मैं क्या करूंगा, अल्टर करूंगा, ठीक है। ठीक है, तो ये दोनों मेरा अल्टर होगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, इसमें डेटा इंसर्ट करूंगा, ठीक है। तो अगर मैं डेटा इंसर्ट करता हूँ तो मेरा डेटा यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ तो अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे ये डेटा यहाँ पे इंसर्ट हुआ, सब क्वेरी, ठीक है। So what is a subquery? So basically subquery means query inside another query. Okay. तो यहाँ पे हम यहाँ पे ये एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे कि सब क्वेरी कैसा लिखा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली मेरे पास 2 टेबल है, ठीक है। फर्स्ट टेबल है मेरा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम
स्टूडेंट, ओके। और दूसरा टेबल है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, ओके। तो ये मेरा दो टेबल है, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना है, सब क्वेरी यहाँ पे लिखना है। तो सब क्वेरी में मैं क्या करूंगा कि मुझे ओनली द डेटा चाहिए कौन सा, कि जिसमें जो भी स्टूडेंट है वो कंप्यूटर डिपार्टमेंट का होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि डिपार्टमेंट आईडी में डिपार्टमेंट आईडी 1 इज फॉर द कंप्यूटर, एंड अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट टेबल देखेंगे तो स्टूडेंट टेबल में डिपार्टमेंट आईडी है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 1 जो भी स्टूडेंट के लिए रहेगा तो वो डेटा हमें रिट्राइव करना है। तो यूजिंग द सब क्वेरी, ओके। तो सब क्वेरी, तो सब क्वेरी कैसा लिखा जाता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपना डेटा आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेरी हो गया, ओके, ठीक है। उसके बाद अगर हमें सब क्वेरी यूज करना है तो हम यहाँ पे वेयर कंडीशन में वेयर, अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि जो स्टूडेंट टेबल है उसमें डिपार्टमेंट आईडी कॉलम है, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट आईडी कॉलम हमें चेक करना है ये टेबल में, डिपार्टमेंट टेबल में, कि उस जिसका 1 है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करो, वेयर डिपार्टमेंट आईडी इन। सो यहाँ पे मैंने इन की ऑपरेटर यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। तो इन ऑपरेटर के बाद मेरा अगेन दूसरा एक क्वेरी रहेगा। तो मैं क्वेरी पहला आपको लिख के यहाँ पे दिखाता हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, ओके, वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 1। तो फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट आईडी 1 जिसका भी रहेगा तो उसका डेटा हमें यहाँ पे मिलेगा। तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा सब क्वेरी हुआ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डिपार्टमेंट आईडी, ओके। और उसके बाद ये मेरा ब्रैकेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मेरा कंप्लीट क्या हुआ, सब क्वेरी हुआ। तो ये क्वेरी जो है, ये क्वेरी अपना आउटडोर क्वेरी रहेगा, ठीक है। तो मैं इसको ना यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम यहाँ तक देखेंगे तो ये मेरा क्वेरी क्या होगा, सब क्वेरी हुआ, मतलब ये अपना इनर क्वेरी हुआ, जिसका जो भी रिजल्ट आएगा, अगर हम इसका रिजल्ट देखेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, डिपार्टमेंट आईडी 1 आ रहा है, ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी 1। तो इसका आउटपुट हमें ये क्वेरी को जाएगा, आउटडोर क्वेरी को, और इसमें जो भी डेटा होगा वो क्या होगा, फिल्टर होगा। तो अगर हम इसको अगर हम रन करेंगे तो जिसका भी डिपार्टमेंट आईडी 1 है तो वो डेटा हमें यहाँ पे रिट्राइव हुआ, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, सिक्वल क्वेरी में यहाँ पे हम इसको सब क्वेरी बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो भी हमने देखा था 12, उसके बाद 13, तो जॉइंस। Thank you friends for watching this video. If you have any query, any question, you can mention in the comment box. And if you like this video, please share with your friends and family members. And don't forget to subscribe my channel. So thank you again, and I wish you happy learning.